আজিৰ লাইফত কোনে নিজৰ জীৱনটো ভাল কৰিব নিবিচাৰে। আমি সকলোৱে কাম কৰি আছোঁ নিজৰ পৰিয়ালক এটা বেটাৰ লাইফ দিবলৈ, এটা কমফৰ্টেবল লাইফ দিবলৈ। কিন্তু আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সময়ত বা ইউটিউবৰ সময়ত আমি এটা বেলেগ লাইফ কল্পনা কৰি লওঁ, আৰু যাৰ বাবে বহুত সময়ত আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। যেনে আমি যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট টিপছ বিচাৰি পেলাই শ্বৰ্টকাট এটা বিচাৰোঁ যাতে ইমিডিয়েটলি আমাৰ পইচাখিনি ডাবল হৈ যায়, ট্ৰিপল হৈ যায়। কিন্তু সঁচাকৈ এই কাম কৰাটো সম্ভৱ হয় জানো? ফেচবুক বা ইউটিউবত আজিকালি বহুত ধৰণৰ মানুহে কিছুমান ষ্টকৰ টিপছ দিয়ে আৰু এটা ফ্লেচি লাইফষ্টাইল দেখুৱাই ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি পেলায়। আজি যদি তেনেকৈ ইমান সহজ হয় ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা বনোৱাটো, তেতিয়াহ'লে যিসকল ধনী মানুহ আছে, ধৰি লওক মুকেশ আম্বানী হওক, টাটা বিৰলা হওক, তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি নিজৰ বিজনেছত কিয় টাইম দি আছে? তেওঁলোকেতো ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট বা ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট ট্ৰেডাৰজন হায়াৰ কৰি পেলাই জাষ্ট ষ্টক মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু এইটোতো ইমান সহজ নহয়। আপুনি যদি সঁচা অৰ্থত পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, নিজৰ লাইফষ্টাইলটো বঢ়াব বিচাৰিছে, ভাল কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ষ্টক মাৰ্কেট কেতিয়াও শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেম নহয়, ইটছ অলৱেজ এ লং টাৰ্ম গেম। ষ্টক মাৰ্কেটত শ্বৰ্ট টাৰ্ম আজি 1 লাখ টকা লগাই 1 কোটি টকা কেতিয়াও হৈ নাযায়। তো সেই ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনালোকে যিমানখিনি টাইম ইনভেষ্ট কৰিছে, তো তাৰ সলনি যদি আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত কাম কৰে, নিজৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰে বা নিজে কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে, সেইটোৱে সঁচা অৰ্থত আপোনাৰ কাৰণে ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যন কৰি দিব। ষ্টক মাৰ্কেটত আমাক সেবিয়ে ৰেগুলেট কৰে, আৰু যেতিয়া আমি ট্ৰেডিঙৰ কথা কওঁ, তেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটে সদায় এইটো এলাৰ্ট দিয়ে যে 95% অফ ট্ৰেডাৰে সদায় পইচাটো লুজেই কৰে। চ' আজি আমি এই কথাখিনি পাতিবলৈ আমাৰ মাজত আছে মিষ্টাৰ ৰাজেশ সিংলা। তেখেত CEO আৰু ফাণ্ড মেনেজাৰ হয় আলফা এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীৰ। তেখেতে যোৱা এটা দশক ধৰি এই ইনভেষ্টিঙৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, বিজনেছবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি আছে, কোন বিজনেছত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, বিইং এ ফাণ্ড মেনেজাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টক চিলেকশ্যন কৰে। তো এই কথাখিনি আমি জানিবলৈ আহক তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ। वेलकम मिस्टर सिंगला, वेलकम टू असम, वेलकम टू जेट पर्पल। सो आपने क्योंकि इतना साल ये फील्ड में काम किया है जी, और आप वही काम कर रहे हैं जो एक आसाम के मान लीजिए स्मॉल टाउन में जो लड़का बैठा हुआ है, उसका भी मन में आता है कि मैं भी कोई ऐसा अच्छा स्टॉक ढूंढ लूँ जहाँ पे लाख रुपया लगा के 1 करोड़ रुपया बना लूँ जी। ठीक है, ये बहुत दिखने में सिंपल लगता है बिकॉज यूट्यूब या फेसबुक में यही प्रमोट होता है जी। ये इतना सिंपल है क्या एक बिजनेस आइडेंटिफाई करना? थैंक्स नसीर जी फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो ये यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम इन्वेस्टर्स को जो ये चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। है ना। और कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो देखिए देखने में ये बड़ा फैंसी लग सकता है और बड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है, बट ऑनेस्टली ये इतना सिंपल नहीं है। मेनली एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप कंपनी को एनालाइज करते हैं। ये हॉट टिप्स या ये जो ये टिप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा नहीं है। अब कंपनी को आप कैसे जज करते हैं उसके लिए फ्रेमवर्क्स रहते हैं। हम अभी तक 4 इन्वेस्टिंग मॉडल्स के बारे में प्राइमरी सुनते आए हैं, जिसमें सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग हमने सुना वॉरेन बफेट साहब से। वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की कंपनी के अगले 5 साल के क्या कैश फ्लोज रहेंगे उसको आज के प्राइस पे डिस्काउंट करते हो एक इंट्रिंसिक वैल्यू बनाई जाती है, और उससे मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है कि क्या ये शेयर प्राइस उससे अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो ये एक मेथडोलॉजी हुई। फिर रिलेटिव वैल्यूएशन, अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे आप कंपनी को कंपेयर करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बाद आती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें कैंसलियम का मॉडल हो गया कि किसी की कंपनी की अर्निंग्स किस स्पेस से ग्रो कर रही हैं, उससे आप कंपनीज को क्वालिफाई करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग मॉडल है जिसमें इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज इंडेक्स को प्राइमरी मूव कर रही हैं वो आती है। इनफैक्ट आज के डेट में इवन म्यूचुअल फंड्स में आने लगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। एंड द लास्ट इज द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, कि कंपनी अपने ऑपरेशन से पैसा बना रही है या फिर उन्होंने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसे बनाए हैं। ऑब्वियसली ऑपरेशन के पैसे से को बेटर देना जाता है किसी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इन चारों इन्वेस्टिंग मॉडल्स को हम अपने फ्रेमवर्क में अमेलगमेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम जब किसी कंपनी के बीच में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज़ अ 85 पॉइंट चेकलिस्ट। 85 पॉइंट चेकलिस्ट पे आप एक कंपनी को कंपेयर करते हैं, एक स्कोर कार्ड मैथोडोलॉजी बोलते हैं हम जिसे, एंड दिस इज प्राइमरी बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स जिसे हम LMVT का फ्रेमवर्क बोलते हैं। L goes for लीडरशिप,
कि जिसमें आप प्राइमरली पहले फाउंडर को उसका विजन, उसकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस चीज़ को चेक करते हैं, बिजनेस का उसका एक्यूमन कि कितना शार्प है, वो कितना बड़ा विजन है उसका, उसकी टीम कैसी है, प्रोफिशिएंसी कैसी है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स है जो जिसके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बोलेंगे तो इंटरनेट में कंपनी के बारे में जो लिखा हुआ होता है या हम लोग उनका बैलेंस शीट पढ़ के जो ये होता है, क्या डिफरेंस होता है एक फंड मैनेजर ने कोई एक कंपनी जो आइडेंटिफाई करता है वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है और एक नॉर्मल आदमी जो ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है सेकेंडरी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो पहले तो वही है जी कि मतलब कंपनीज को आप शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे, आप कंपनीज पे तक पहुंचोगे भी कैसे कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टिंग मॉडल्स के थ्रू आप एक कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करोगे जी। और फिर डिफरेंस कहाँ आता है। अब जैसे आपने जैसे एक किसी नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें तो इसको हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, जिसमें आप पुराने डेटा के ऊपर से जज कर रहे हैं कि ये कंपनी उसी तरीके से आगे बढ़ती है। बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है कंपनी के पास पुरानी ऑर्डर बुक्स थी जिसको उसने एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो गया, पर क्या उसके पास आगे के लिए ऑर्डर बुक्स है? तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट इसको बोलते हैं, जिसपे आप फाउंडर के जो कॉन कॉल्स होती है, क्वार्टरली कॉल्स होती हैं, उसको आप अटेंड करते हैं। एज फंड मैनेजर्स हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम फाउंडर्स को मिलते भी हैं जी, मैनेजमेंट टीम को, उनके CFO के साथ पहले उनका क्या विजन है, उनका क्या प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, वो सारा विजन के बारे में हम समझेंगे, उसको वेरीफाई करते हैं। फिर ड्यू डिलिजेंस के बीच में हम जाकर प्लांट को विजिट करते हैं जी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस किया जाता है ताकि जो हम हिकअप्स देखते हैं वैसे वाली कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट ना करें। उनका पूरा का पूरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, क्रिमिनल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से लीगल ड्यू डिलिजेंस जिससे लेते हैं। टेक्नोलॉजी का ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एक इन्वेस्टमेंट के लिए टिक किया जाता है कि हाँ इस कंपनी में हम मतलब ये शॉर्टलिस्ट हो गई, इस कंपनी में हम एंटर कर सकते हैं। अब एंट्री में भी 4 चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको कब एंटर करना है, कितना एंटर करना है जी, कब कितना, मतलब व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय। तो व्हाट टू बाय हमने फाइनल किए, फिर व्हेन टू बाय एंड हाउ मच टू बाय, एंड फिर आता है एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट। सो एग्जिट इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर 3 थिंग्स। तो अपने को बाकी 3 चीज़ें भी देखनी है। तो उस हिसाब से एग्जिट में जो जैसे हमने बोला ये एग्जिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट वो तो है ही, क्या वैल्यूएशन में आप खरीद रहे हैं, लेकिन उस वहाँ से कितने टाइम पे हमको निकलना है, कब निकलना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक यंग लड़की के पास 20-22 साल के पास लड़के के पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है और वो उसको कुछ इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको ट्रेडिंग में जाना चाहिए? जैसे आजकल बहुत ये फैंसी होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाते हैं लोग, बहुत पुट खरीदते हैं, वो रेड बार और जो कैंडल स्टिक देखते हैं ना, रेड ये कब घुसना है, ग्रीन में घुसना है, तो वो सब क्या इतना इजी होता है क्या वो एनालिसिस करना? तो मैं तो एक ही चीज़ पूछूंगा कि आपने क्या कभी किसी को 1 लाख से मतलब क्या बहुत वेल्दी बनते देखा है? ऐसे कितने लोगों को आप और हम जानते हैं जी? हम हमारे मतलब पूरी हिस्ट्री में अभी तक पिछले में 20 साल से स्टॉक मार्केट में आई डोंट नो वन सिंगल ट्रेडर जिसने एक्चुअली में पैसा बनाया हो जी, है ना। आप जैसे अभी बता रहे थे कि 95% इन्वेस्टर्स पैसा ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमने तो ये देखा है कि जो अगर मैं सेबी का रिकॉर्ड बोलूँ तो वो 99% बोलते हैं, क्योंकि वो जो 4-5-6% है वो इंस्टीट्यूट्स पैसा बना रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर या एक नॉर्मल इन्वेस्टर के अगर मैं बिहाफ पे बोलूँ तो शायद लेस देन 1% ही ट्रेडिंग में पैसा बना पाते हैं। तो ट्रेडिंग से की बजाय जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपये किसी के पास है, 2 लाख रुपये किसी के पास है, उसको डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे आप जेट पर्पल में लोगों की पहले इनिशियल गोल्स को समझते हैं और गोल के हिसाब से प्लानिंग करके उनको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। उसके हिसाब से कौन से कोई म्यूचुअल फंड या कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके हिसाब से गोल के हिसाब से आप मैपिंग करके उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज़ है कि आप लोग SME में इन्वेस्ट करते हैं जी, जो बहुत लुक्रेटिव लगता है,
तो अभी मान लीजिए कि हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो लोग एसएमई हैं अभी, जो मान लीजिए 20-30 करोड़ के टर्नओवर पे है, अभी मान लीजिए कि उनको नेक्स्ट रिलायंस बनना है या टाटा बनना है, तो उन लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि वो लोग बड़ा पैसा मार्केट से उठा पाए या वो अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए और वो बड़ा बन पाए? कैसे होता है वो प्रोसेस, क्या है उसका? देखिए, प्रोसेस में सबसे पहले तो जो हम बेसिक लेवल पे बोलते हैं कि फाइनेंशियल्स को अपने आप इम्प्रूव करिए, और स्पेशली उसके लिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको बेटर करिए। पहला स्टेप पे हम लोगों को बोलते हैं कि या तो किसी CFO को आप अपॉइंट करिए, या फिर कोशिश करिए कि आप अगर वो पॉसिबल हो सके तो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, उससे फाइनेंस के कॉम्प्लायंसेस प्रॉपर करवाइए। जी, कोई भी चीज़ में आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेबी के साथ या तो जब आप बेसिकली इन्वेस्टर्स का पैसा लेना चाहेंगे, तो दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंड रहता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। जी, कंपनी बहुत बार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है या लिमिटेड कंपनी नहीं है। हाँ, हो सकता है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो। तो पहले तो कंपनी का स्ट्रक्चर सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिस्टिंग करवानी है तो आपको कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनी का। सेकेंड, फिर जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करी कि आप अपने जितने भी कंप्लायंसेज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की हैं या GST की हैं या जिस भी आप सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हो, उसके जितने भी कंप्लायंसेज हैं उनको प्रॉपर फॉलो करिए। ये बोलना चाहते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि ये एसएमई जहाँ पे मार खाए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर अकाउंटिंग का मेथड नहीं होता नहीं, इसीलिए वो होता है। अच्छा, और एक मेरा सवाल ये है कि आजकल क्या होता है कि हम लोग ये एस्पायर करते हैं कि मुझे खुद का काम करना है। कोई बंदा अगर नौकरी में है, उसको भी खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसका लाइफ बेटर करना है। तो कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है उसका? मतलब टू आइडेंटिफाई और टू कंसीव ए आइडिया एंड गेटिंग द फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक, तो वो एक बार थोड़ा शॉर्ट में अगर आप समझा पाए तो बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, जर्नी में हम सबसे पहले ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस, अगर आप डेफिनेशन देखें कंपनी की, क्यों कोई कंपनी फॉर्म की जाती है या बिजनेस किया जाता है, ताकि लोगों की लाइफ को बेटर किया जा सके। जी, तो आप सबसे पहले तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जिसके करस्पॉन्डिंगली उसके टेकर्स भी हों, मतलब उसके कस्टमर्स भी आपको मिल सकें। तो कौन सी चीज़ों में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी ऐसी यूनिक प्रपोजिशन है जो आप प्रोवाइड कर सकें। तो जितना आपका बिजनेस यूनिक होगा उतनी आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ऐसे अगर कोई चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी से स्टार्टअप्स या SME कंपनीज बनती हैं, तो बड़े ही इनोवेटिव बिजनेसेस हैं। ये भी देखा जा सकता है इस इनोवेशन को और समझने के लिए, अगर मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखूँ, एक तरह की आप कंज्यूमर एंगल से सोच सकते हैं कि सब लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल एंगल से सोच सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ों से आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ फोकस कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होगी, और गवर्नमेंट खुद मतलब दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर। यस, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनीज आए और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। आज PSUs नए PSUs नहीं हुए भाई, तो अब गवर्नमेंट इस सब प्रॉब्लम्स कौन सी सॉल्व कर रही है। गवर्नमेंट अगर थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो इसको हम टेलविंड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट में किसी टाइम में इंडिया में कोई सिस्टम नहीं था, बट अब गीला जो वेस्ट है वो अलग है, जो बेसिकली रिसाइक्लेबल है, सूखा वेस्ट अलग है, रिसाइक्लेबल अलग है। एंड देन यू ऑल्सो हैव प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो इन तीनों वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर कंपनीज बन रही हैं, एंड दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको सॉल्व करना चाहती है। और ये क्या है, इंडिया ये किसी पर्टिकुलर सिटी की प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली ये सब पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही पावर की अगर मैं बात करूँ, एक्सपोर्ट्स है, गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एक्सपोर्ट्स कर सकें, ताकि डॉलर इंडिया में या फिर बाकी करेंसीज भी इंडिया में आए और हमारा डेफिसिट कम हो सके। अब इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में जैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में हर साल 7 करोड़ मैरिजेस होती हैं और कुछ 10 से 11 करोड़ इंडियंस हम बेसिकली बच्चे पैदा हो जाते हैं। आज तकरीबन 160 करोड़ इंडियंस हैं। अब इंडिया में 30,000 करोड़ का टॉय खपता है और 300 करोड़ के रेवेन्यू करने वाली भी टॉय में की कोई कंपनी नहीं है। हम सब कुछ पहले चाइना से, कोरिया से, ताइवान से इम्पोर्ट करते थे।
अब गवर्नमेंट चाहती है कि इस इम्पोर्ट को कर्व किया जा सके, तो कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 65% कर दी गई। तो आप मोटा मोटा ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस प्लान कर रहा है तो वो थोड़ा देख ले कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है जी। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हम लोग यहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर में जी। तो उस चीज़ को सोच के अपना डॉक्यूमेंटेशन अगर सही करके बैंक को अप्रोच करे वो लोन ले सकते हैं, या अगर उनका बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हुआ तो वो प्राइवेट इक्विटी भी ले सकते हैं, या एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, अपना आइडिया को पिच कर सकते हैं जी। जैसे शार्क टैंक पे होता है, राइट। तो वैसा कर सकते हैं। तो ऑप्शंस are बहुत अवेलेबल है मार्केट में जी। तो वो आपको चूज करना ही मेनली काम क्या है कि कौन सा ऑप्शंस में मुझे जाना चाहिए। जी। तो सिंगला जी हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करते हैं छोटा सा। जी। सो आपके हिसाब से पैसा क्या बना सकता है, पेशेंस और इंटेलिजेंस? पेशेंस में ज़्यादा मतलब तवज्जो दूंगा, मतलब यस गिव मोर वेटेज टू पेशेंस जी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी चीज़ में आपको पैसा बनाना है, तो पेशेंस आपके पास Is the key. इज द की। ओके, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें या मैं वेट करूँ मार्केट टाइमिंग कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल? मार्केट को देखिए, डिसिप्लिन और मार्केट टाइमिंग तो बहुत सिंपल ऑब्वियस आंसर है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, और ये सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, हम तो अपनी लाइफ में भी कहते हैं जी। कि डिसिप्लिन इज़ नॉट, एक पहले होता था कि बच्चों के लिए बोला जाता था कि शायद डिसिप्लिन एक काइंड ऑफ सज़ा की तरह लगती थी। हाँ। बट हम ये मानते हैं कि कोई भी आदमी जब कुछ अचीव करना चाहता है तो उसका डिसिप्लिन ही उसको लेकर जाएगा, ये मेरा पर्सनली मानना है। विराट कोहली से लेकर अगर आज लेवल सूर्यवंशी की बात हो रही है तो उनके डिसिप्लिन है जिनकी वजह से वो आज जो आउटकम्स पे वो पहुँचे। इनकम ग्रोथ या रिटर्न चेजिंग? देखिए हमारा अगेन वही मानना है कि इनकम रिटर्न्स को चेस करने से अकेले से नहीं होगा। इनफैक्ट मैं इन दोनों के साथ जो जोड़ूंगा कि वो गोल प्लानिंग होनी चाहिए। जी जी, कि अगर लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग है, मतलब कोई रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप अलग तरह के एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो गोल्स के साथ मैं गोल्स के साथ करना अच्छा, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग तो प्राइम मोस्ट है। सो थैंक यू मिस्टर राजेश, आपका टाइम देने के लिए हम लोगों को। सो कोई भी अगर आपके सजेशंस है, जो यंग जो इन्वेस्टर्स है, जो एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आपके लिए? देखिए दो चीज़ें हो गई। एक तो है कि अगर कोई यंग पर्सन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली वेल्थ मैनेजर के साथ एसोसिएट करके अपने गोल्स के हिसाब से प्लानिंग स्टार्ट करी, और जो सरप्लस मनी है वो धीरे धीरे आप फिर अलग अलग अगेन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उसके थ्रू भी आप प्रॉपर फंड मैनेजर्स के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी हैं। अगर मैं एस्पिरेशनली जो लोग फाइनेंस में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो अगेन मैं ये बात बोलूँगा कि बेसिक्स से स्टार्ट करिए। बेसिक्स में आज की डेट में जैसे CFA है, ऐसे कोर्सेज की तरफ जाइए जो आपको एक प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं, थ्योरेटिकल अकेली नॉलेज के साथ, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो CFA उसमें मुझे काफ़ी अच्छा पर्सनली लगता है कि उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो अगर कोई आदमी, इट इज़ जस्ट लाइक CA है ना, जैसे यहाँ इंडिया में CA है, हम US में CFA बोलते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। उससे आप एक कंपनीज को फंडामेंटली और टेक्निकली कैसे एनालाइज करें, उसके एक ग्रास रूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वहाँ से आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू राजेश जी।